Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Technique we have learned, but we have not learned a technique of soft clustering. So in this particular chapter, we will learn about the soft clustering also, that is expectation maximization. And then we will also learn, because the cluster number of cluster is the main thing to consider. So how to choose the number of cluster, what parameter we require to check, that we will learn in this topic. And of course, learning using ANN. So this is what we are having with chapter 5, and the problems are on hierarchical clustering and logistic regression. These are the two numerical topics. So under this, numerical may come in your exam. Now, before we start with the non-linear regression, we require to check on linear regression first. Okay, so now we will see what is the linear regression. Yes, Adarsh is saying y is equal to ax plus b. Very good. So that is what the straight line equation, and use linear regression is nothing but a straight line to find out the optimum value to get the straight line. Okay, so now here we require to find out the optimum value of your intercept b and slope a. Clear? As per given by Adarsh. Okay, y is equal to ax plus b. Okay, so that is what the linear regression is. Okay, so now in general linear regression, what we are having multiple variable, maybe possible we are not having only one independent variable, maybe possible we are having multiple independent variable. Then my formula will be y is equal to beta 0 plus beta 1 x1 beta 2 x2 up to whatever the variable number of variable you are having up to xn, plus epsilon is the nothing but that error values. Okay, so this is what the linear regression formula, whether it is single linear regression or multiple, this is the general formula. If it is single linear, तो x2 नहीं होगा, only x1 तक ही value होगा. ठीक है, but in this case the important thing is independent and non-independent, जैसे सैफुल्ला ने बताया. ठीक है, so what is independent variable? Where the value is known. That is what the independent variable. Now this independent variable can be your continuous variable or discrete variable. Discrete है तो बात ही नहीं है, वो तो numerically होगा. But other continuous variable है like age, income, height. These are all continuous. Why this is continuous? Because between the two number there are infinite numbers. Like suppose we are talking about, let's say, height. So height, if someone is having height, let's say 5 इंच और किसी का अगर 6 इंच है, तो उसके बीच में बहुत सारे नंबर है. ठीक है, so that is what the fraction values we are having. So that is also in the form of numerical value. And if you are having data as a categorical value, then the regression model is a kind of model where we require to input only numerical value. So whatever the data you are having as a categorical data, you require to convert it into numerical. So now if you are having gender, then you require to use dummy data, that is 0 and 1 for male and let's say 0 for female. If you are having CT data and you are doing this particular regression model, you want to implement for few cities. So whatever the city you are having, you require to give them numbers. Okay, then that way all each and every data you can convert into numerical value. Clear? So that is nothing but a dummy data we require to use. And end of the day, of course, you require that database कि किसको 1 दिया था, किसको 2 दिया था. Clear? So that is what the independent variable we are having, and dependent variable, which is based on this independent variable, we are predicting this variable, right? But with the history data, we are having this dependent variable value also. Clear everyone? ठीक है, तो अगर वो वैल्यू भी हमारे पास है सपोज, ठीक है, सो डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होगा, तो इट कैन बी कंटिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, वो कंटिन्यूअस में ही आएगा, वो फ्रैक्शन वैल्यू में ही आएगा, बिकॉज every time we are having data in the form of b plus ax plus b. ठीक है, तो उस केस में डेटा आपका इंटरसेप्ट है, आपका स्लोप है, तो उस केस में आपको डेटा कंटिन्यूअस में ही मिलेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा. ठीक है, एंड इट कैन बी योर कैटेगोरिकल डेटा. ठीक है, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या मिलेगा, 0 और 1, डिपेंडिंग अपॉन द रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, so that is what we are having. And again this categorical data is nothing but
यस एंड नो, ठीक है, और वो यस एंड नो है वो 0 और 1 में आपको मिलेगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द कंटिन्यूअस एंड वर्सेस कैटेगरिकल वैल्यू. नाउ हमने ये पूरा मॉडल देखा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस लीनियर रिग्रेशन, बट योर अदर रिग्रेशन आर बेस्ड ऑन दिस. ओके, सो नाउ सपोज वी आर हैविंग सम डेटा ऑन हाउस प्राइस एंड हाउस साइज. तो बेस्ड ऑन द हाउस प्राइस एंड हाउस साइज, सपोज यू आर हैविंग सम 50,000 history data. The first and foremost thing is you require to plot that data, you require to see the scatter graph, and you can come to the conclusion that what type of regression will work. Okay, so now this type of data is easily says that okay, this is a kind of linear regression, and this is also you can say simple linear regression because here we are having only two data. Clear? So that is what the thing. So in this supervised learning algorithm, what we are doing, if we are having the value of 1, we can easily calculate the value of other based on the value of intercept and the slope. ठीक है, तो ये हमने देखा था यहाँ पे. ठीक है, सो अगर हमें ये जो पिंक लाइन है इस टाइप का अगर कोई हमें रिग्रेशन लाइन मिलता है based on the calculation, based on the given data, then if I want a kind of, let's say my budget is this 220K, ठीक है, दैट इज माई बजट. सो उस बजट में मुझे कितनी स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, दैट आई कैन प्रिडिक्ट. क्लियर एवरीवन? दैट वी हैव डन ऑलरेडी एक्चुअली. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एग्जांपल. सो सपोज वी आर हैविंग दिस डेटा लाइक साइज इन फीट स्क्वायर एंड प्राइस इन डॉलर सपोज. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने डेटा है? एम डेटा, where x is my input, this is my input, and y is my output, this is my output. So if I want to if I have x is my input, it means मैं square feet अगर हमारे पास already data available है square feet का, तो हमें price जो है वो predict करने में आसानी होगी. Clear? Based on the linear regression. Clear हुआ सबको ये? तो ये हमने already किया हुआ था. तो what actually we are doing with the model representation? Here we are having training data and we are having the learning algorithm. Now what we are learning over here? We are learning for the best value of A and B for all my given observation. What is the important thing in the learning algorithm? That is hypothesis, and hypothesis is theta 0 plus theta 1 x. Okay, so here we are actually assuming that okay, so this will give you the best value for any future prediction. Okay, so that is what, and this hypothesis required to map with the input and output value. Clear? So that is what the linear regression value is. ठीक है, so यहाँ पे हमें ये सारी चीजें पता है कि input variable बहुत सारे हो सकते हैं based on suppose हमारे पास 50 data available है, 50 rows available है house size and house price का, तो हमारे पास total input features कितने होंगे? 50. So x1, x2, x3 up to 50 डेटा रहेगा हमारे पास. द सेम वे वी आर हैविंग दैट मच आउटपुट डेटा ऑल्सो. आउटपुट कौन सा होगा हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज वाई. एंड इन द हिस्ट्री वी आर हैविंग आउटपुट एंड इनपुट बोथ. दिस इज माई ट्रेनिंग सेट. ओके, if I am considering that first 50 as a training data. Okay, so this is what my training, and we require to see this function, and we require the h of x good predictor for the corresponding value of y. तो ये हमें कैसे find out करना है? So again हमने ये already किया हुआ है. So if I will not consider intercept, let's say, ठीक है, अगर मैं intercept की value को नहीं consider करती, ठीक है, intercept की value अगर 0 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग स्लोप की वैल्यू 0 कर रहे हैं. ठीक है, स्लोप की वैल्यू 0 है और इंटरसेप्ट 1.5 है. ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या है आपकी? 0. ठीक है, स्लोप की वैल्यू है आपकी 0 और इंटरसेप्ट यहाँ पे ये है. ठीक है, तो ये डेटा कैसे आएगा? इस तरीके से. देयर इज नो रेट ऑफ चेंज. ओके, देयर इज नो रेट ऑफ चेंज इन द एक्स वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन मिलेगी, रिग्रेशन लाइन. नाउ सपोज हम ये इंटरसेप्ट है आपका, दैट इज थीटा 0. ठीक है, अब ये थीटा 0 अगर हम लोग 0 कर देते हैं ना, देयर इज नो इंटरसेप्ट बट देयर इज अ रेट ऑफ चेंज. ठीक है, इन द एक्स. तो रेट ऑफ चेंज इन द एक्स तो ऐसे आएगा, 0 से स्टार्ट होगा बिकॉज देयर इज नो इंटरसेप्ट. Okay, but if we are having both the data, then we will get the exit line.
लाइकवाइज, ठीक है। सो क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, वट एवर द वैल्यू वी आर हैविंग, ठीक है, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमें जो है वो हाइपोथेसिस का क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, एंड बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस फॉर्मूला वी कैन डू द प्रिडिक्शंस, ओके। ये प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। योर h of x is nothing but your output value, ठीक है। So now again for getting the optimum value of this x and optimum value of a and b, or theta 1 or theta 1 and theta 0, we are having here cost function, which is also called loss function, error function, mean square error. There are so many names for this, and we have already learned this in the gradient descent. Okay, so gradient descent में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मिनिमम एरर कैसे आए उसके लिए यहाँ पे इंटरनली जो होता है, आपको आप जब करते हो तब कैलकुलेशन में आप वही कर रहे हो, ठीक है। जब आपने मैनुअल कैलकुलेशन किया था इन मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1, देन एक्चुअली यू हैव डन दिस, एंड अभी जो आप अगर प्रोग्राम के थ्रू भी कर रहे हो तो इंटरनली यही होता है कि हाउ यू आर गेटिंग द मिनिमम एरर, ठीक है। तो मिनिमम एरर कैसे होगा, तो जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट में भी देखा था कि एक्चुअल आउटपुट एंड प्रिडिक्टेड आउटपुट। सो माय सपोज माय प्रिडिक्टेड आउटपुट इज दिस h ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो वो हम h फंक्शन से हम ढूंढ रहे हैं, माइनस माय एक्चुअल आउटपुट होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, m is your number of observations, okay, and this way we are calculating this average value. जितना कम होगा उतना आपका ये error value जो है वो कम होगा, and you will get the best value for your regression line, ठीक है। तो बेस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बेस्ट वैल्यू मीन सपोज you have generated this regression line from 5000 data, and whenever you test or you predict other data, ठीक है, then maximum time you get the accuracy, ठीक है। मैक्सिमम एक्यूरेसी मीन्स योर प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा दोनों वो सेम होना चाहिए मैक्सिमम टाइम, इट्स नॉट ऑलवेज 100%, ठीक है। दिस इज बिकॉज दिस इज ऑल प्रिडिक्शन, ठीक है, बट आपको मिनिमम वैल्यू आए उस तरीके से यहाँ पे काम करना है। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। एंड दैट वे वी हैव ऑलरेडी डन विद द एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, ठीक है, कि हमें एक्स ऑन वाई से करना है या वाई ऑन एक्स, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज जस्ट यू कैन से ग्लिम्स, क्या, ताकि आपको आगे समझ में आए, ठीक है। अनदर वन इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन में क्या, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो हियर वी आर हैविंग डेटा more number of independent variables, okay. Multiple linear regression is what, where we are having multiple independent variables, okay. So kind of a thing where currently in single linear regression we are having x and y, so it is very easy to actually visualize the things, right। यहाँ पे हमें बहुत easy हो रहा था कि हम कैसे उसको visualize करें, x y is equal to x plus b, या theta 0 plus theta 1 x, उसको कैसे हम प्रिडिक्ट करें और कैसे हम प्लॉट करें, तो ये सारी चीजें देखने में आ रही थी। बट जैसे जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके डायमेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ इफ यू आर हैविंग 3 डायमेंशन डेटा, नाउ दिस इज 3 डायमेंशन, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ वेट और साइज है, यहाँ पे वेट, साइज एंड ब्लड वैल्यू, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज 3 डायमेंशन वैल्यू, ठीक है। सो उस तरीके से अगर और एक अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तो 4 डायमेंशन हो जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। नाउ दिस इज नॉट easy to visualize actually on plot, clear। So now we require to depend on what formula, ठीक है। So now onwards with multiple linear regression we are actually depending on the formula than the visualization, okay। So this is just an extension of linear regression, again supervised learning involve more than one predictor variable or independent variable, and response variable is always one, that is y, ठीक है। So now we are actually doing the multidimensional feature vector we are using over here, ठीक है। So यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, तो ये क्या है, there are 2 independent variable x1 and x2. Now if there are 2 independent variable, then we are having 2 slopes,
beta 1 and beta 2. Now we require to predict this value also. So now the optimum value of alpha, beta 1 and beta 2 will give the perfect value of y. Clear? Because my x1 and x2 is already there in the data, and based on that I want to calculate the y. Then the x1, x2, the y is always depending on what? This value of alpha, beta 1 and beta 2. That slope and intercept. Clear everyone? ठीक है. So that is what the simple linear regression. तो यहाँ पे हम simple linear regression देख रहे हैं, पर ये देखो आपका multiple regression है. ठीक है. यहाँ पे multiple variables होंगे x1, x2, x3. सॉरी, तो ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. सो दिस इज योर 3-dimensional डेटा. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ नाउ माई y इज डिपेंडिंग ऑन द x1, x2 मल्टीपल फीचर वेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा और मल्टीपल में क्या होगा. बट जब हम स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करते हैं और उसको मिनिमाइज करने की ट्राई करते हैं तो हमें सेम तरीके से जानना है. ठीक है, सेम तरीके से हम काम करेंगे उसके अंदर. ठीक है. So that is what the background for the nonlinear and logistic regression. Okay. So now what is this non-linear regression? जो हमने previous regression देखा वो straight line function था. बट क्या हर एक डेटा के लिए स्ट्रेट लाइन जरूरी है या होगी ही? ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. So now we required a kind of a data, kind of you can say curvilinear data अगर हमारे पास है तो उस तरीके से अगर लाइन होगी तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. ठीक है. तो कहाँ पे आपको नॉन लीनियर यूज करना है, कहाँ पे लीनियर यूज करना है, वो सब कैसे पता चलेगा? ठीक है. सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. नॉन लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन. It is a method to model a non-linear relationship between the dependent and independent variable. So now there is no straight relationship between the dependent and independent variable, but we are having. It means what? We don't have exactly x1, x2, x3, but maybe possible we are having x1 square, x2 square, x3 square. So that is not the linear relationship. Okay. It is used in place when the data show a curvy trend. ओके. तो जहां पे भी उस तरीके से डेटा होगा तो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर टू सी द डेटा, यू रिक्वायर टू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू शुड हैव द डोमेन नॉलेज एंड देन यू गो फॉर द रिग्रेशन मॉडल सिलेक्शन. ओके. Linear regression would not produce very accurate result when compared to non-linear because data को जो वो ज्यादा follow करता है non-linear compared to linear. ठीक है. So what is non-linear model? So in general non-linear model दो तरीके से है. Non-linearity of dependent variable and non-linearity within independent variable. Okay, so non-linearity of dependent variable means what? Maybe possible we are having some data like this. अगर किसी को दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, इसको और डिटेल में बहुत देखने वाले हैं हम लोग. तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो क्या है? रन बाय विराट कोहली. ठीक है, वो डेटा हमारे पास है. और दूसरा डेटा है कि इंडिया ने लूज किया था या विन किया था. ठीक है. तो जब और हमें प्रिडिक्ट करना है कि अगर मैं बताऊं कि अगर विराट कोहली ने 90 रन किया है तो इंडिया विन करेगा या लूज करेगा. नाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी वेरिएबल, दैट इज 0 and 1. सो नाउ हियर यू कैन सी दिस, द डेटा व्हिच आई एम प्लॉटिंग ओवर हियर इन द स्कैटर ग्राफ. द डेटा इज लाइक विन 111 and lose 000. Now, can you draw a straight line from this data? Not possible, because my output is like that, 0 and 1. Okay, how can I draw a line? Because that line will not give you any accuracy. Correct? So that is the type of data. Independent variables अगर non-linear है तो आपको non-linear model ही use करना है. Clear हुआ? ठीक है. Non-linearity within independent variable. So within independent variable, like until now we have considered a linear relation between the independent variable. ठीक है. अभी तक हमने क्या देखा कि independence variables जो है that is multiple regression में हमने देखा कि बहुत सारे हो सकते हैं, x1, x2, x3. उनके बीच में अब कुछ relation है क्या? So we have already assumed that this is linear relationship.
but it cannot be linear relationship. There is an option, function that can be transformed to linear or cannot be transformed to linear. ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. सो उस टाइम पे भी आपको नॉन लीनियर मॉडल को यूज करना हो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन लिनियरिटी. बट हाउ टू डिटेक्ट द नॉन लिनियरिटी? जैसे हमने तो यहाँ पे बोल दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लिनियर है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लिनियर है, तो आप उसको नॉन लिनियर मॉडल में डिफाइन करो. बट उसको कैसे डिटेक्ट करें कि नॉन लीनियर है ये? ठीक है. सो देयर आर सो मेनी वेज यू कैन डिटेक्ट. Okay, the first way is theoretically. Theoretically you can say that okay, this is a kind of a non-linear graph. Okay, तो वो आप कर सकते हो. एक ऐसी टाइप की थियोरी के जिसमें आपको पता चलता है मैन्युअली ही कि अच्छा यहाँ पे ये डेटा जो है वो इंक्रीज होगा, देन आफ्टर थोड़ा सा कांस्टेंट होगा, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. जैसे शेयर मार्केट के डेटा की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, तो वो इस टाइप का बिहेवियर देता है डेटा. ठीक है. सो हियर यू कैन नॉट गो फॉर द स्ट्रेट लाइन. Then scatter plot. While looking on the scatter plot diagram, the plot which are seeing, okay, उससे भी पता चल जाएगा कि वो linear है या non linear relationship है. ठीक है. Then seasonal data, if we are having seasonal data like agriculture data, जिसमें हमें कोई particular crop की बात करते हैं, तो it is always depending on season. Okay, so that is a kind of a data where we are having non-linearity, where linear thing is not there. Then estimated model does not fit well in well or does not fit it at all. ठीक है. जब वो fit नहीं हो रहा है linear में, ठीक है, सो उस टाइम पे एस्टिमेटेड मॉडल अगर फिट नहीं हो रहा है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, नॉन लिनियरिटी में उसको चेक करना चाहिए. एंड एफ टेस्ट आप लोगों ने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा, so can often do incremental f test also give you the result that your model is linear model or non-linear model. f test का जो भी आउटपुट आता है उससे भी पता चलता है. so there are so many tests ना, student t test, then आपका काई स्क्वायर टेस्ट था, एनोवा टेस्ट था, वैसा ही एक एफ टेस्ट है. ठीक है. उसके डेटा से पता चलता है. ठीक है. सो नाउ हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर. यस एनीवन? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है? यस एनीवन? लीनियर और नॉन लीनियर डायग्राम? Linear. Very good, Gaurav, Adarsh, Nisha, Shubham. So this is linear because the scatter plot itself says that this is a straight line. Okay. So this is what we have learned in the second point. कि scatter plot से भी पता चल जाता है कि वो linear है या non-linear है. Now this is the kind of graph we are having. So this is linear or non-linear? Non-linear. Very good, Shubham, Gaurav, Namrata. So this is non-linear because the plot itself showing us curve, right? So this is non-linear. Okay, this is also non-linear. This is a kind of you can say quadratic formula we are having, and वो क्या है, non-linear format में. ठीक है. So यहाँ से scatter plot से ही समझ में आ जाता है. Now there are some popular type of non-linear regression model, that is exponential model. Exponential model में again we are having that a and b variables, जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में वेरिएबल्स थे ए एंड बी, दैट इज स्लोप एंड इंटरसेक्ट. यहाँ पे भी होगा ए एंड बी. द फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई e रेज टू bx. सो x जो है वो आपका क्या है अभी, वो डेटा. कौन सा डेटा? इनपुट. ठीक है. बाकी तो सारे कांस्टेंट है. देन पावर मॉडल a x रेज टू b. ठीक है. तो ये आपका एक मॉडल है वेयर x इज योर इनपुट, y इज योर आउटपुट. देन सैचुरेशन ग्रोथ मॉडल ax अपॉन b प्लस x. ठीक है. एंड पॉलिनोमियल विच इज वेरी वेल नोन एंड मोस्टली यूज्ड in non-linear data, that is y is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to am x raised to n. ठीक है.
नाउ नॉन लीनियर पॉलिनोमियल मॉडल में हमें कहाँ तक एक्सटेंड करना है इसको, जो आपके स्क्वायर चल रहे हैं, स्क्वायर हुआ देन क्यूब हुआ, ठीक है, वो कहाँ तक एक्सटेंड करना है, दैट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर डेटा एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. सो दिस इज योर नॉन लीनियर रिग्रेशन वेयर वी आर हैविंग n data points x1 y1 x2 y2 up to xn yn, okay, and some best fit function will be there. Best fit function based on a given model. जो भी मॉडल आप यूज कर रहे हो, अगर आप इसमें एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हो, पावर यूज कर रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन होगा फॉर द डेटा, ठीक है. एंड देन बेस्ड ऑन दिस वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, we can calculate the future value. Clear? So that is what the non-linear regression is. तो हमें इसमें की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन में. सबसे पहले तो कि नॉन लीनियर रिग्रेशन इज अ मेथड टू फाइंड अ नॉन लीनियर मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है. लीनियर रिलेशनशिप में क्या है, एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होगा, या फिर एक डिक्रीज होता है दूसरा भी डिक्रीज होता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द लीनियर रिलेशनशिप, बट हियर वी आर हैविंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है. सो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है, उतना ही इंक्रीज नहीं होता पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा डेटा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ओके. लीनियर रिग्रेशन रिलेट्स टू वेरिएबल्स विद अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे भी क्या होगा, टू वेरिएबल यूजिंग कर्व, ठीक है. सो वो हमें याद रखना है, x इज योर इनपुट एंड y इज योर आउटपुट, ठीक है. नाउ सपोज वी आर हैविंग अ डेटा लाइक दिस, ये जो आपका रेड कलर का है डेटा पॉइंट्स, these are the data we are having, and if we go for the straight line we will not get the proper output, okay. So now we will see the polynomial model. So polynomial model में क्या दिया है हमें, suppose we are having value x1 y1 x2 y2 up to xn yn, then my best fit function कौन सा होगा, y is equal to a0 a1x up to anx, ठीक है. ये जो है हमारा मॉडल है. अभी इसमें क्या हो रहा है, हम एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियली x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. x का 1 x रेज़ टू पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 अप टू पावर n, बट हमें कहाँ तक रुकना है, पावर को कहाँ तक रुकना है वो कैसे पता चलेगा इन पॉलिनोमियल, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज अगेन वी आर गोइंग फॉर बैक टू दैट हाउस प्राइस एंड हाउस साइज, and for house price and house size suppose we are having frontage and depth, ठीक है. जो आपका हाउस है उसका फ्रंटेज का डेटा है और डेप्थ का डेटा है इंस्टेड ऑफ ओनली साइज. तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए x1 एंड x2, एंड दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कॉस्ट, ठीक है. दिस इज कॉस्ट वेरिएबल ना, बिकॉज हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ साइज नाउ वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स x1 एंड x2, ठीक है. सो हियर वी आर एक्चुअली गिविंग द डिटेल थिंग्स फॉर आवर फंक्शन. जितना डिटेल में डेटा देंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी. जैसे कि मैं बात कर रही थी, अगर लोकेशन भी ऐड कर देते हैं और लोकेशन को वेटेज दे देते हैं कि कोलाबा साइड का है तो ज्यादा वेटेज है, और अगर विरार साइड है तो कम वेटेज है, इस तरीके से एक थर्ड अगर बनाते हैं तो और ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी. क्लियर हुआ. उसके बाद साइज के साथ अगर हम लोग फ्लोर राइज की बात करते हैं कि कितने फ्लोर पे है, जितनी हाइट पे होगा उतना ज्यादा कॉस्टली होगा, राइट. सो दैट वे वी कैन इंक्रीज द पैरामीटर एंड वी कैन गेट द मोर एक्यूरेसी. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैरामीटर वी आर क्रिएटिंग द न्यू फीचर्स, ओके. तो नए नए फीचर्स, यहाँ पे नए नए फीचर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा तो एक दो ही है, उससे हम एक्स स्क्वायर x1 x2 x3 x4 x5 कैसे मिलेगा हमको सब, तो वो हम एग्जिस्टिंग डेटा से ही बना रहे हैं. जो एग्जिस्ट डेटा है उससे कैसे बनता है, तो फीचर को कंबाइन करके हम नया फीचर्स बना सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर को हमने x1 बोल दिया, एक्स क्यूब को हमने x2 बोल दिया, एक्स रेज़ टू 4 को हमने x3 बोल दिया. दैट वे वी आर गेटिंग द न्यू फीचर्स, ओके. सो दैट इज व्हाट द वैल्यू, ठीक है. सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है इन पॉलिनोमियल रिग्रेशन,
So in hypothesis function need not be linear, and if does not fit data well, then we require to change the model. We require to switch from linear to non-linear, or you can say straight line to curve. ठीक है, और उस केस में हमें स्ट्रेट लाइन से कर्व में अगर हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमें कहाँ तक जाना है, क्वाड्रेटिक तक जाना है, क्यूबिक तक जाना है, या स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी. सो फॉर एग्जाम्पल अवर हाइपोथेसिस फंक्शन इज दिस theta 0 plus theta 1 x1, then we can create the additional features based on x1. x1 से हम एक नया फीचर्स ऐड करते हैं और वो नया फीचर है लेट्स से x1 स्क्वायर, जिसको हम x2 बोल सकते हैं, और तीसरा फीचर है लेट्स से x1 क्यूब, जिसको हम x3 बोल सकते हैं. तो दैट वे वी कैन क्रिएट न्यू फीचर फॉर मोर एक्यूरेसी. जैसे हमने बात की थी, जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतनी एक्यूरेसी होगी. ठीक है, एक अगर हम क्यूबिक फंक्शन की बात करते हैं तो वो क्यूबिक फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल में, वेयर द डेटा इज अप टू x रेज टू 3. ठीक है, और सॉरी x रेज टू, हाँ x रेज टू 3 है तो क्वाड्रेटिक है आपका. ठीक है, तो उस हिसाब से नया 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 यहाँ पे ऐड होता जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन अगर है तो जितना डेटा है उसका स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग. ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट करते जाएंगे और स्क्वायर रूट करते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का डेटा क्या है, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1. तो जो भी x1 है उसका स्क्वायर रूट. अगर आपको और आगे जाना है तो x3 प्लस जो स्क्वायर रूट आया उसका स्क्वायर रूट. क्लियर हुआ? तो दैट वे. बट वेन एवर वी आर यूजिंग पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, उस टाइम पे स्केलिंग करना बहुत जरूरी है. वाई स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे x1 फीचर तक ही हम लोग थे, और अगर हम x स्क्वायर फीचर तक रहते हैं तो उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसका सीधा स्क्वायर हो गया. क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूब तक चले जाते हैं तो उसका सीधा क्यूब, मतलब स्केलिंग कितना एक्सपोनेंशियली वैल्यू बढ़ रहा है. तो उस अगर एक्सपोनेंशियली वैल्यू बढ़ेगा तो उस केस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव द रेंज. ठीक है, कि हम 1 से 1000 अगर x1 का रेंज है, देन द रेंज ऑफ x1 स्क्वायर बिटवीन 1 to 10,000 x1 क्यूब जो है वो 1 से इतना डेटा बढ़ जाएगा. तो उसको हम स्केलिंग करते हैं. स्केलिंग सबको आता है, हमने एडीएमएस में भी किया था स्केलिंग. तो हमें स्केलिंग में क्या करना है, कोई भी डेटा है उसको 0 से 1 के बीच में लेकर आना है ना. जेड स्केल पढ़ा था हमने. ठीक है, तो उस हिसाब से मीन मैक्स एल्गोरिथम उस वो भी पढ़ा था. उससे हमें क्या करना है, डेटा को 0 से 1 के बीच में लिखना है, सो दैट डेटा विल मिनिमाइज एंड वो कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, प्रोसेसिंग पावर उतना कम लगेगा. ठीक है, सो अब हमने जो बात की थी ना कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्क्वायर तक जाता है, क्यूबिक है वो क्यूब तक जाता है, या फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो कब क्या कहाँ तक जाना है वो कैसे पता चलेगा. तो अगेन वी आर गोइंग बैक विद द प्राइस एंड साइज वैल्यू. ठीक है, तो प्राइस एंड साइज वैल्यू में हमने क्या किया, जब एक्स स्क्वायर एक्स एक ही वेरिएबल है हमारे पास, द वेरिएबल इज व्हाट, साइज, एंड आउटपुट इज व्हाट, प्राइस. क्लियर? ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स से यहां से शुरू करते हैं कि हम अगर उसको क्वाड्रेटिक बनाए, सबसे पहले तो लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन में सीधा चला जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है वो क्या मिलेगा, एरर फंक्शन जो है वो हाई रहेगा आपका. ठीक है, अगर एरर फंक्शन को थोड़ा सा लिमिट करना है यहाँ पे, तो एरर फंक्शन लिमिट कैसे करेंगे हम लोग, तो एरर फंक्शन को लिमिट करने के लिए व्हाट एवर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास था उसको हमने पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट किया, देन माय रिग्रेशन लाइन इज लाइक दिस, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है. नाउ दिस लाइन सेज दैट, the line says that if I'm increasing the size, some point of time I am getting the maximum price, but after that the price is decreasing. ठीक है, now यहाँ पे कहीं पे भी रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका हाउस का साइज आप बड़ा कर रहे हो और प्राइस कम हो जाए. ठीक है, so this particular equation is not perfect for this particular problem statement. ठीक है, so now we will check for the thing that is called quadratic equation,
क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्यूबिक में अगर हम क्यूब तक चले जाते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो कैसे होगा? तो उस केस में ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, वो ग्रीन लाइन से वो डेटा जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी अगेन सी दिस बिहेवियर ऑफ दिस लाइन, in that case what happened, the price is going to infinity as size is increasing, so some constant must be there, okay. So that is also not proper for our problem statement. So now we will go for the square root, okay. So square root अगर हम लोग लेते हैं और उसकी उस केस में अगर हम देखते हैं, तो आप जिस तरीके से ये ब्लू लाइन सॉरी पिंक लाइन जो देख रहे हो, उस केस में क्या होता है, सम पॉइंट ऑफ टाइम you are getting the maximum value of price, but after that the price will be constant, price जो है वो constant हो जाता है, and this is the perfect example for a perfect behavior for the problem state, okay. So this is a kind of a trial and error method where you require to check whether which particular polynomial regression will work for your problem statement. Clear everyone? So that is what the linear regression is. Linear regression में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? लीनियर रिग्रेशन में हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा है इसमें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में दिस इज ऑलरेडी डन आई थिंक विथ योर मैथमेटिक्स, ओके। सो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन दिस पॉलिनोमियल रिग्रेशन? Okay, so we move ahead with the logistic regression. Okay. Logistic regression is one of the most. Okay, so we will go for the logistic regression. This is most popular ML algorithm for binary classification. Okay, and यहाँ पे क्या होता है, binary classification means my data is categorical data, right? यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो क्या है, कैटेगोरिकल डेटा है, और कैटेगोरिकल डेटा में मेरा जो आउटपुट है वो ऑलवेज 1 and 0 है. नाउ यू नो अबाउट द बर्नौली ट्रायंगल और बर्नौली ट्राई, सॉरी, ये एल्गोरिथम पता है किसी को? बर्नौली ट्राई. तो बर्नौली ट्राई में क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ओके, मल्टीपल टाइम्स, ओके, बट द आउटपुट इज ऑलवेज लाइक सक्सेस एंड फेलियर. Okay, so Bernoulli try में क्या होता है, whatever though your input is there, but your output is always success and failure, just like tossing a coin. So tossing a coin is having only two output, that is success and failure if you are looking for the head. Okay, so that is what, yes Sonia, very good, only two outcomes are there with the Bernoulli trial. Now the trial can be for any number of time, okay, any number of time. आप उसको 10 बार करो, 15 बार करो, 50 बार करो, सेम एक्सपेरिमेंट, बट योर आउटपुट विल ऑलवेज टू थिंग्स, दैट इज व्हाट योर सक्सेस एंड फेलियर. क्लियर हुआ? ठीक है, उसी के बेस पे ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, सपोज योर डेटा इज कैटेगोरिकल डेटा और यू कैन से बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा. सो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होगा, आइदर यू आर गेटिंग 0 and 1. नाउ इन दिस केस आपका ना तो कर्व चलेगा और ना ही योर स्ट्रेट लाइन चलेगी, दोनों भी नहीं चलेगा यहाँ. ठीक है, तो अगेन वी आर गोइंग विद द सेम पेस, सेम एग्जाम्पल. जैसे हमने विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया था, तो विराट कोहली अगर रन बना रहे हैं, तो विराट कोहली ने कितने रन बनाए और उसमें इंडिया ने लूज किया या विन किया. दिस आर द हिस्ट्री डेटा वी आर हैविंग. एंड नाउ सपोज आई फीड सम न्यू डेटा फॉर विराट कोहली run, then I want to predict whether the India will lose or win. Okay, so that is what the prediction I want to do. But I must have some historical data. So now based on the historical data, we have plot scatter graph, and scatter graph से हमें ये डेटा मिल रहा है. अब ये डेटा से हमने स्ट्रेट लाइन ट्राई किया, तो स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली ओनली 1 point you can cover at a time. ठीक है, so your number of error or you can say accuracy will be decreased. Okay, so now you will check for the non-linearity. Okay, so okay, this is non-linear regression, that is there. But in non-linear regression also, if you go for the curve, okay, तो आप कोई भी कर्व लगा दो, यहाँ पे कोई कर्व ऐसा नहीं होगा जो सारे ही
जो ग्राफ के प्लॉट्स है उसको क्या करें, सारे ही प्लॉट को कवर कर ले, ठीक है. सो दिस इज इन फैक्ट वी कैन नॉट यूज दैट पावर मॉडल और पॉलिनोमियल मॉडल, कोई भी यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ वी कैन से स्पेशल टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम where we require to, if you want to cover this all points, then we require to use the sigmoidal graph. sigmoid function हमने already activation function में देखा था. किसी को याद है sigmoid function कौन सा था, जिसका शेप जो है वो एस शेप में होता है, याद आया किसी को? ठीक है, एक छोटा सा देख लेते हैं. दिस इज व्हाट द एस कर्व, ठीक है. और यहाँ पे आपका सारे ही विनिंग का डेटा है और यहाँ पे सारे ही लूजिंग का डेटा है. तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो सिग्मोइडल ग्राफ प्रिडिक्ट होता है, ठीक है. एंड दिस इज द ग्राफ विच विल गिव यू द मैक्सिमम एक्यूरेसी. ओके, सो ये लॉजिस्टिक फंक्शन कैसे काम करता है, उसमें इंटरनली कैसे हम वर्क कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द लाइक्लीहुड ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो ये सबको समझ में आया आज जो हमने देखा? Thank you, everyone.